Newspaper reading is a very good habit to improve your vocabulary and your pronunciation as well. Let's dive deeper into the world of newspaper and let's see, because the words that are being given in the newspaper are updated words. They are updated, and most of the time in your UPSC exams the words are being taken from the newspaper. The excerpts are being taken from the newspaper. So let's get going. So I have taken an article. If you could see that this article has been taken from the Times of India, and that was on Sundays, 16th of November. So we are going to do sessions on newspaper reading as well. We have to make newspaper reading a habit, because when we read newspapers, it really boosts our knowledge also. It really updates us and it helps us. When you have knowledge, you get confidence to speak. Plus, with the help of vocabulary and pronunciation, you are able to express yourself. So this is an article which I have taken on from the newspaper, which was published on the 16th of November. So it says owners may ignore tenant verification at their peril. So let's understand with the help of a newspaper what does the word mean. So owners may ignore. So this article, as I have read, is about the landlord and the tenants. So there is a rule by the government that the tenants, the owner of the house, if they want to rent their house, so they have to do a kind of verification of the tenant. But most of the time, because of the carelessness, the people don't, because of the hassle or carelessness, the landlords or owners of the houses, they don't want to go through this procedure of verification. So this could be very, very dangerous. So it is all about all these things in this article. So it says that owners may ignore tenant verification. It is not mandatory for the owners, although there is a law. It is not mandatory for the owners to get their tenants verified. However, if he doesn't do that, then they are their own risk. So peril means their risk, the danger, the repercussions of their action could be dangerous. So they will be responsible on their own. So despite the city's heightened threat perception, what is the meaning of heightened? Although, so in despite means in spite of also. So in spite of cities heightened, heightened means threat, heightened बहुत ज़्यादा, I'll have to use Hindi also in order to make you understand. बहुत ज़्यादा क्या threat, threat का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब किसी के लिए रिस्की होना, थ्रेट का मतलब धमकी देना भी होता है. तो थ्रेट परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारा अजम्पशन होता है, इमेजिनेशन होता है. इतना ज़्यादा आपको जितना भी रिस्की हमने बताया होगा कि द रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉट गेटिंग द टेनेंट्स वेरीफाइड, thousands of property owners don't comply. What is the meaning of comply here? आई होप ये आपको न्यूज़पेपर दिख रहा है. सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कंप्लाई की. सो कंप्लाई का मतलब क्या होता है? कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना. जो रूल है वी हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स. तो ये कंप्लाई रूल्स को हमें कंप्लाई करना विद मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी. सो द जो मैंडेटरी है टेनेंट वेरिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना है, कंप्लाई करना है. इस साल जो है दिस ईयर दिल्ली पुलिस हैज बुक्ड. यहाँ पे बुक्ड का मतलब किसी को जैसे होटल की बुकिंग ऐसा कुछ नहीं है. ये बुक्ड का मतलब होता है कि उनके केसेस हैं. ये बुक्ड का मतलब होता है उनके केसेस हैं. ऑन एवरेज नियरली 15 प्रॉपर्टी ओनर्स एवरी डे फॉर वायोलेटिंग. वायोलेटिंग का मतलब क्या होता है? ना मानना. किसको ना मानना? रूल्स को ना मानना. सो हम लोग क्या करते हैं? रूल्स को हम वायोलेट करते हैं जनरली. जब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रूल्स को ब्रेक करना आपने सुना होगा, बट द करेक्ट यूसेज फॉर द टर्म इज वायोलेटिंग द रूल्स. हम जो भी कोई रूल है हर जगह का वो हम वायोलेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस डेटा के हिसाब से 4650 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनर्स अप टू अक्टूबर अंडर सेक्शन 223. सेक्शन 223 का मतलब है डिसोबेइंग अ लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ भारतीय न्याय संहिता. पुलिस हैव कंडक्टेड वेरिफिकेशन चेक्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख टेनेंट्स. तो आई होप यहाँ तक आपको ऐसा पॉसिबिलिटी, आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस इज पुलिस सेट द हाई नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस. प्रोसिक्यूशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे द केसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द केसेस जो हुए हैं किस पे? शोड नेग्लिजेंस अमंग प्रॉपर्टी. नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? मैंने आपको शायद एक बार वोकैबुलरी में कराया था. नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस. किस चीज का केयरलेसनेस? प्रॉपर्टी ओनर्स का केयरलेसनेस. जिनको या तो उस लॉ के बारे में पता नहीं था या डेलिबरेटली. डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के. कई सारे लोग सोचते हैं कि गेटिंग दिस into this legal procedure is very hassle. It's a big hassle. So deliberately उन्होंने जानबूझ के, I deliberately chose not to
go to party. तो deliberately का मतलब होता है जानबूझ के, knowingly, intently, they did not get their backgrounds of their tenants verified. ठीक है. They often considered the process unnecessary or time consuming. देखो वही बात है कि उनको लगा कि या तो unnecessary है, जरूरी नहीं है, या it is too time consuming, wastage of time है, and were unaware that non-compliance का मतलब है नहीं मानना, right? So when we talk about non-compliance could lead to fines or illegal action. उनको ये नहीं पता चला कि अगर वो नहीं मानते हैं तो या तो उनको फाइन भरना पड़ेगा या लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा. अर्ली नवंबर इसका मतलब क्या होता है? नवंबर के बिगिन में. सो अर्ली जनवरी, अर्ली नवंबर, एंड नवंबर मीन्स बिगिन, एंड मतलब आखिरी में. ये अर्ली नवंबर बोला. इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर में न्यू दिल्ली पुलिस हैज एप्रीहेंडेड 260 नेशनल ऑफ सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज. एप्रीहेंडेड का मतलब है क्वेश्चन आंसर करना, पूछना. कहाँ के? 260 nationals of several African countries from different parts of the city for illegally staying in India and initiated action. Initiated का मतलब है उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया अगेंस्ट ओवर 25 प्रॉपर्टी ओनर्स. 25 प्रॉपर्टी ओनर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया? एक्शन लिया. द ऑनगोइंग इंस्पेक्शन ऑल्सो अनकवर्ड अनदर रिस्क. अनकवर्ड मतलब और भी रिस्क को उन्होंने क्या किया? अनकवर किया. यानी कि एक तो रिस्क है ही, उसके साथ दे आर मोर रिस्क अटैच टू इट, जो कि उनको बाद में रियलाइज हुआ. द इलीगल ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स. बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसे थे जो इलीगली क्या हुए थे? सेटअप हुए थे. एटलीस्ट 113 गेस्ट हाउसेज वर आइडेंटिफाइड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑपरेटिंग विदाउट द रिक्वायर्ड लाइसेंसेज. I hope this much is clear, because verification नहीं हुआ. Verification time पे you need certain kind of documents, maybe your Aadhaar card, maybe some kind of license. So that license was missing. Licensed guest houses are subject to inspections. Are subject मतलब the licensed guest houses जो है वहाँ पे inspections होना चाहिए and regulations. But unlicensed ones operate without oversight. जो unlicensed होते हैं वो नज़रों में कहीं दिखते ही नहीं है हमें, right? Making it easier to carry out illegal activities unnoticed. Unnoticed का मतलब obviously notice का मतलब notice करना. अनरूट वर्ड लग गया, अननोटिस करना, यानी कि हमारी नज़रों के सामने नहीं आते हैं. सो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज जो है कैरी आउट होती हैं. इफ क्रिमिनल एलिमेंट्स स्टे एट सच प्लेसेस एंड कमिट क्राइम्स, ट्रैकिंग देम बिकम्स डिफिकल्ट, एंड ऑफिसर सेड. तो कई सारी जगह में ये दिस लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं उन्हीं लाइन्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि वोकैबुलरी थोड़ी सी मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन देम टू यू. सो यहाँ पे तो सही है कि अगर कुछ ऐसा क्राइम होता है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पर्सन बिकॉज द वेरिफिकेशन हैज़ नॉट बीन डन. सो द ट्रैकिंग इज ऑल्सो नॉट डन मोस्ट ऑफ द टाइम. स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम देवराज श्रीवास्तव सेड टेनेंट वेरिफिकेशन वॉज अ मैंडेटरी. अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मैंडेटरी का मतलब क्या है? जरूरी. ठीक है, मैंडेटरी का मतलब जरूरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज मैंडेटरी टू वेयर योर यूनिफॉर्म व्हेन यू कम टू डीडीए. मैंडेटरी टू वेयर योर यूनिफॉर्म, यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म व्हेन यू कम टू द इंस्टीट्यूट. तो मैंडेटरी मतलब जरूरी है. तो जरूरी लीगल, कमिंग टू द बैक टू द न्यूज, तो मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक क्रूशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूशियल हियर? वाटर इज क्रूशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग. क्रूशियल का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट. सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन एंश्योरिंग टू श्योरिटी, टू श्योर करना. इंश्योरिंग का मतलब श्योर करना ही होता है. तो इंश्योर करना सेफ्टी और सिक्योरिटी. पुलिस रिलाई का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड इज वेरी रिलायबल. मैंने आपको कल ही कराया था ये वोकैबुलरी, रिलायबल. तो रिलाई का मतलब क्या है? डिपेंडेबल होना. पुलिस डिपेंड होती है किस पे? यहाँ पे इस प्रोसेस में. कौन से प्रोसेस में? वेरिफिकेशन के प्रोसेस में. टू मॉनिटर रेजिडेंट्स एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी और इलीगैलिटी. तो पुलिस के पास एक प्रोसेस है. ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसे बूम करके तो कोई आ नहीं जाएगा और बोलेगा ही इज द कल्प्रिट और ही इज अ क्रिमिनल. सो क्या होता है उस केस में? पुलिस एक प्रोसीजर को फॉलो करती है. तो उसी प्रोसीजर के बारे में बात हो रही है. किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We are also raising awareness among citizens by meeting them regularly using social, print and electronic media. So जो पुलिस वाले हैं वो awareness भी क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं. Okay, now and actively engaging with market and resident associations to highlight the importance of verification and the legal obligations. Obligation का मतलब क्या होता है? Obligations का मतलब होता है वो काम जो सही है. You have to do that.
तो अभी यहाँ पे अवेयरनेस कैंप चला रही है, उसके बाद मीट कर रही है, किसके पास, जो रेजिडेंस अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे मिल रही है, ताकि उनको बता सके कि कितना ज़रूरी है वेरिफिकेशन करना। तो अभी देखो आप, जब आप न्यूज़पेपर से यू डू द वोकैबुलरी रीडिंग, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यू गेट अपडेट्स ऑल्सो, है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। मैं सबको बोलती हूँ कि आपको यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर्स, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स यू आर नॉट ओनली improving on your English, you are also working on your knowledge also. So this knowledge, see, whenever you get a chance to speak on something, knowledge जो है this is really going to work अगर आपको उस knowledge को utilize करना आ जाता है। So यहाँ पे आज हमने क्या सीखा कि टेनेंट का वेरिफिकेशन पुलिस क्या कर रही है। दिस इज द 16 नवंबर का न्यूज़पेपर है, इट इज़ एन अपडेटेड वन। तो अगर आपका GD है, बाय चांस अगर आपको कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़े तो यू आर अपडेटेड नाउ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। एज द सिटीज रेंटल मार्केट, रेंटल का मतलब तो आपको पता ही है, रेंटल मतलब रेंट पे देना, कोई भी चीज को रेंट पे देना इज रेंटल। तो सिटी का जो रेंट का मार्केट है वो ग्रो, बढ़ता जाता है। आपको पता है प्रॉपर्टी सच अ थिंग, जो इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ रही है। प्रॉपर्टी ओनर्स मस्ट नॉट ओवरलुक देयर लीगल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो हमारी जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ओनर्स को भूलनी नहीं चाहिए। The officer insisted tenant verification helps identify who is living in the area. Tenant verification identify कराता है कि उस एरिया में कौन रह रहा है, कब से रह रहा है, एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब prevents criminals from using rented accommodation as safe havens. ये हेवन है, एक होता है हेवन HEAVEN, ठीक है, HEA, ये हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हेवन एंड हेल आपने सुना होगा, हेवन। लेकिन एक यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है HAVEN, हेवन है, ठीक है, ये हेवन, हेवंस, ये बिना ई के जो हेवन है इसका मतलब है एज देयर रेजिडेंस, एज देयर प्लेस ऑफ अबोर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे हेवंस की तरह यूज करते हैं जो क्रिमिनल्स हैं रेंटेड अकोमोडेशन को। and enables police to track residents quickly and respond efficiently during investigations or emergencies. बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि सेफ्टी पर्पस के लिए it is very important and mandatory for us or for the owners to get the tenants verified. Police pointed out that tenants could be verified both online and offline. Now this is one of the services. अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है कभी भी, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जैसे डिजिटल इंडिया का टॉपिक आ गया आपके पास, या आपके पास टॉपिक आ गया गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स, लॉ, रूल्स, कुछ ऐसा आ गया, तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो। देखो पुलिस ने अब क्या किया है, अब वेरीफाई करना बहुत आसान कर दिया है विद इन द रीच ऑफ पीपल। पहले क्या था, ऑफलाइन जाके करना पड़ता, डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ता था, बट नाउ इट इज़ वेरी इजी, राइट, यू कैन डू इट ऑनलाइन ऑल्सो। सो सी हाउ मेनी फैसिलिटीज हैव वी बीन प्रोवाइडेड, जाने की भी जरूरत नहीं है हमें कहीं पे, ऑनलाइन भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। द ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम इज अवेलेबल ऑन द दिल्ली पुलिस वेबसाइट। दिस न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली का है, तो इसे दिल्ली के बारे में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। एवरी स्टेट, एवरी प्लेसेस हैव देयर ओन काइंड ऑफ न्यूज़, तो ये दिल्ली का न्यूज़ है, तो उनके पास जो है वेबसाइट में एवरीथिंग इज अवेलेबल, और प्रॉपर्टी ओनर्स कैन डाउनलोड द फॉर्म एंड सबमिट इट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं दे विल मेंशन इट, तो विद दोज डॉक्यूमेंट्स टू द पुलिस स्टेशन कंसर्न। तो ये जो है हमारा, वी हैव डन दिस, वी हैव फिनिश्ड दिस, कंप्लीटेड दिस आर्टिकल। एंड वाई टेनेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताई है कि आइडेंटिफाई कौन रह रहा है उस एरिया में, अगर हमें पता चलता है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू ट्रेस द पर्सन, तो ट्रेसिंग करना आसान हो जाएगा। देन क्रिमिनल्स जो है रेंटेड अकोमोडेशन यूज करते हैं फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो अगर उसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देन वेरीफाई रिकॉर्ड्स हमें ट्रेस करवाते हैं इन द केस ऑफ एमरजेंसीज, और हमारे पास एक टेनेंट की आइडेंटिफाई होती है जो हमें ट्रांसपेरेंसी देती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन रिड्यूसेस चांसेस ऑफ टेनेंट एंगेजिंग। जब वेरिफिकेशन होता है तो किसी भी टाइप का कोई स्कैम होता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, चोरी का सामान होता है, मिसयूजिंग होता है, वो ट्रेस करने में हमें आसानी होती है, राइट। So this is my today's first session on taking the newspaper article, and we will be doing this time and again because we really want you to be updated। और मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि UPSC में न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा आपके वोकैबुलरी आते हैं, right? So I'm going to get more articles for you, and that's all for now. Keep practicing and do subscribe to Sandeep Sir's Doon Defense Academy channel for more tips, tricks and learnings like this. Happy learning. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.